everyone, how are you all doing? I'm sure you all are doing amazing. So, welcome back to another Insta Live session at Skills Rediscovery, yet another interesting session with our viewers. So guys, हर बार की तरह इस बार भी we have an interesting Insta Live session with you all. And this time it's something very new for a lot of you. A lot of you must be aware about it, but I'm sure मेरे लिए तो ये एक नई चीज़ थी. So आपको भी आज एक कुछ नया स्किल सीखने को मिलेगा, I'm sure. So guys, before we get to the good part, let me first tell you about our platform, that is Skills Rediscovery. Okay, so for all our viewers who have no information about Skills Rediscovery or who have just joined Skills Rediscovery, let me tell you, Skills Rediscovery is a platform wherein we bring our trainers and learners together. And हर बार हम एक इंटरेस्टिंग इंस्टा लाइव करते हैं जहाँ पे हम स्किल बेस्ड कोर्सेज की बात करते हैं. जो भी कोई नए कोर्सेज आए हैं या भी जो ऐसे कोर्सेज हैं जो कि आपकी स्किल पे काम करेंगे, हम उस तरीके के कोर्सेज को प्रमोट करते हैं और आपकी लाइफ बेटर बनाते हैं. एंड टुडे वी हैव वन सच ट्रेनर विद अस हु इज गोइंग टू introduce us to a very new technological skill, something that you must not know about and something that can enhance your career. और आपको पता भी नहीं होगा उस बारे में, लेकिन आपका करियर उसमें बन सकता है. So let us invite our trainer first and get starting, guys. Hi sir, Hi. how are you? I'm fine. What about you? I'm good too. So guys, we finally have here with us Mr. Ishan Mehta. Mr. Ishan Mehta is a very skilled and expert person in building information modeling. अब आप सोच रहे होंगे building information modeling क्या होता है? तो आज हम इसी बारे में बात करेंगे. So basically, building information modeling is a virtual way of creating buildings on computer, so that आप उसको real life में किस तरीके से construct करेंगे. हम उसके projects और उसके models virtually देखते हैं. But we'll get to know more about it when he talks about it. So let me tell you about him and his experience. So sir has various years of experience in this particular field, wherein he has constructed various models for National Parliament, Central Vista, Philippines Airport, Club Babylon Ahmedabad, Zydus Hospital, Vadodara, Goa Airport, and many such international projects too. So he has been, very skilled in this particular field, and he has a lot of experience for you guys. At the same time, he's been teaching a lot of corporate trainers and Autodesk certification too. So, guys, आज हम एक ऐसे इंसान से एक नई चीज के बारे में सुनने का मौका मिलेगा जो शायद ही हमारी लाइफ में हम जानते हो या जिसके बारे में हमें पता है. So I am really excited to know about it. How are you guys excited? Let me know in the comment section below. And thank you so much, sir, for joining us today. It's like I know कि Saturday को मुश्किल होता है. People have weekend plans and कुछ और plans होते हैं. Especially for a person like you, आप बहुत busy होंगे. Still you took out time. So thank you so much. And now over to you, sir. Yeah. Yes, sir. So over to you, sir. Tell us about your experience and how do you feel, getting connected with Skills Rediscovery. Tell us about your course. Go ahead, sir. Yes. So right now I'm working on my own startup called Archive and beamcatdesign.com. We provide all kind of construction solutions to our client across the world. Right now we are working in US, Australia, Middle East and India. And my main focus is in building information modeling. And Right. I am doing it from last 7 years. And as you would say, I got a chance to work with very good projects. I'm sure. Okay. Wow, amazing. And I'm sure कि आपका जो कोर्स है Skills Rediscovery पे बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग, वो हमारे स्टूडेंट्स के लिए कितना इंफॉर्मेटिव है, कितना कंस्ट्रक्टिव है. तो उसके बारे में जानने से पहले आप बिल्कुल ब्रीफ में हमें बता दीजिए कि बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग है क्या, ये क्या किस बला का नाम है, ये बता दीजिए. Yes. अगर हमें बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग के बारे में समझना है तो पहले हमें बिल्डिंग के बारे में समझना चाहिए. तो बिल्डिंग है वो एक ह्यूमन बॉडी का जैसा ही है. जैसे हमारी बॉडी के अंदर स्केलेटन है, वैसे ही बिल्डिंग के अंदर बीम्स एंड कॉलम्स स्ट्रक्चर है जो बिल्डिंग को सपोर्ट करता है. जैसे हमारे मसल्स है वैसे उसके अंदर आर्किटेक्चर है, वॉल्स एंड पार्टीशन एवरीथिंग. और उसके अलावा जैसे हमारे नर्वस सिस्टम है, हमारा ब्रीदिंग सिस्टम, डाइजेशन सिस्टम है,
वैसे ही मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, प्लम्बिंग एंड फायर सेफ्टी, वो सारी चीजें बिल्डिंग को जिंदा रखती है। तो हम बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग के बारे में बात करते हैं। उसके अंदर जब हम साइट पे एक्चुअल काम स्टार्ट करते हैं, उसके पहले ही वर्चुअल उसका मॉडल कंस्ट्रक्ट होता है। तो व्हेन वी कंस्ट्रक्ट द वर्चुअल मॉडल in computer before starting the actual construction, then we already know what are the consequences and errors we are going to face when we start the actual construction. And also to generate accurate drawings and to do value engineering. आपने कभी ऐसा नहीं सुना होगा कि कोई डॉक्टर अगर हार्ट ट्रांसप्लांट कर रहा है तो वो ऐसा बोलेगा कि मुझे हाथ डालने के लिए जगह नहीं मिल रहा है, क्योंकि जो गॉड ने हमें बनाया है उसके अंदर जगह भी रखी है कि हम डॉक्टर ऑपरेट भी कर सकता है, और एकदम कम स्पेस में इतना बड़ा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर हमारे बॉडी में आ जाता है। तो आइडियल बिल्डिंग भी ऐसा ही होना चाहिए, जहाँ पे बिल्डिंग अच्छे से मेंटेन हो सकता है, जहाँ बिल्डिंग में कम से कम पैसा लगता है, बिल्डिंग बनने में कम से कम टाइम लगता है, क्रेन और लेबर जो मेन होता है कंस्ट्रक्शन का खर्चा, अगर वो टाइम हम कम करते हैं कंस्ट्रक्शन का तो वो बच सकता है। तो ये सारी चीजें बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग का पार्ट है। कुछ लोग उसको बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट भी बुलाते हैं। ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि जस्ट हमने उसको 3D बना दिया, आपको उसके लिए टेक्निकली साउंड होना पड़ेगा। अगर आप आर्किटेक्चर हो तो आपको आर्किटेक्चरली पता होना चाहिए कौन कौन से एलिमेंट और कौन कौन से प्रोडक्ट यूज हो रहे हैं उसके अंदर। अगर आप मैकेनिकल इंजीनियर हो तो उसके रिलेटेड आपको नॉलेज होना चाहिए, अगर आप स्ट्रक्चरल इंजीनियर हो तो उसके रिलेटेड, और सिविल इंजीनियर तो उसको रिलेटेड। जो बीम है वो सिर्फ सॉफ्टवेयर नहीं है, उसके अंदर ये पूरी टेक्नोलॉजी आती है। Right. So like sir, you said that this particular concept is not only applied in just architecture, ये मैकेनिकल में भी आ सकता है, ये इलेक्ट्रिकल में भी आ सकता है, राइट? Yes. तो आजकल जो इंजीनियरिंग की जितनी भी स्टडीज हैं, जितने भी कॉलेजेस हैं, तो क्या ये पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट वहाँ पे अलग से पढ़ाया जाता है? इज इट अ पार्ट ऑफ द करिकुलम? Sorry. Am I audible now? Yes, yes. So I was asking कि जितने भी आजकल के इंजीनियरिंग करिकुलम हैं या जो कॉलेजेस हैं, स्पेशली इंडिया में, तो इज दिस अ पार्ट ऑफ द करिकुलम? क्या ये उसमें है या फिर अलग से पढ़ाया जाता है? किस तरीके से इसकी पढ़ाई होती है? नहीं, हमारी कॉलेजेस में अनफॉर्चुनेटली ये सारी चीजें अभी पढ़ाई नहीं जा रही है। और जो बेसिक है आज से 30 साल पहले भी जो इंडस्ट्री में यूज हो रहे थे वैसे सॉफ्टवेयर लाइक ऑटोकैड भी हमारी कोर्स करिकुलम का फुल टू पार्ट नहीं है। तो लोग ऐसे ही साइड में सीखते हैं, जैसे हम कर रहे हैं वैसे ही बहुत सारे कोचेस हैं वो सिखाते हैं। So guys, unfortunately ये कॉलेजेस में तो नहीं पढ़ाया जाता है, बट आपके लिए एक बेस्ट पार्ट ये है that स्किल्स रीडिस्कवरी पे इसका एक अमेजिंग कोर्स है बाय मिस्टर ईशान मेहता, एंड वो आपको ये कोर्स के बारे में बहुत ही डिटेल में और अच्छे से पढ़ाएंगे। एंड गाइज एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन योर स्किल, एंड ये भी एक तरीके का स्किल इनहेंसमेंट टूल है जो कि आपको आपके इंजीनियरिंग करियर में, चाहे वो आर्किटेक्चर का हो, मैकेनिकल का हो, इलेक्ट्रिकल का हो, उसमें डेफिनेटली हेल्प करेगा। So guys, after this Insta Live, go check out our course at Skills Rediscovery. इसके बारे में सर अभी बताने वाले हैं। तो सर मैं ये भी पूछना चाह रही थी कि जो आपका कोर्स है, this new technological course, जो बहुत जल्दी लॉन्च हो चुका है Skills Rediscovery पे, आप उसमें किस तरीके से पढ़ाएंगे? क्या करिकुलम होगा? What will be the schedule of the course and कितने दिन का ये कोर्स होगा, उसके बारे में बताइए। एक्चुअली ये कोर्स है, उसके अंदर हमने उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया है। एक है लेक्चर्स का पार्ट है जो हम वीकली या फिर डेली बेसिस पे हम उसको प्लान करके 1 आवर का लेक्चर रहेगा, और नेक्स्ट डे जो रहेगा वो प्रैक्टिस का रहेगा। क्योंकि अगर मैं पूरा भी लेक्चर आपको समझा दूं और फिर अगर प्रैक्टिस नहीं हुआ है, उसका एग्जैक्ट इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ है, तो उसका कोई यूज नहीं रहता है। हमारे करिकुलम में हम सिर्फ सॉफ्टवेयर को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर के साथ साथ और भी चीजें जो सॉफ्ट स्किल हमें चाहिए इस पर्टिकुलर फील्ड के लिए, वो सारी भी हम इसके अंदर कवर करने वाले हैं। नाइस। So sir, I was thinking
if you can just give us a quick introduction about a little bit of building information modeling, because that people are going to join again, and then we can continue with Revit. Just a little introduction of building information modeling, that's it. Okay, so building information modeling, as the name says, it is about the building. And if we say about the building have multiple of streams involved in this, like civil engineer, architects, mechanical engineer, electrical engineer. Each person have its own role, and they make a virtual building in our computer before starting the actual construction, so that we can get idea what are the problem we are going to face when we will start the actual construction. Some people also call it as a building information management, and that's how there's the introduction of the. Right. So basically, कोई भी building whenever it's going to be constructed, इससे पहले हम उसका एक virtual model बना के कंप्यूटर पे देखते हैं, how does it gonna look और क्या क्या specifications है, right sir? ऐसे ही बिल्कुल. Yes. So as we discussed about, this could be a good career prospect for those in architecture or mechanical or electrical, right? Yeah. So architecture का तो it's pretty simple, that's how it's gonna be useful, but how is it gonna be useful for people in electrical or mechanical stream? So जब हम बिल्डिंग के बारे में बोलते हैं तो आर्किटेक्चर पार्ट है, वो एक स्पेस प्लानिंग करते हैं कि कहाँ पे बेडरूम रहेगा, कैसे लिविंग रूम रहेगा. अगर ऑफिस है तो हम उसका प्रॉपर स्पेस मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं. इलेक्ट्रिकल इंजीनियर विल डू दी लाइटिंग डिजाइन, फिर वो बिल्डिंग को इलेक्ट्रीफाई कैसे करना है. अभी जैसे सोलर का बहुत बढ़ चुका है, तो सोलर कैसे करना है, वो सारा पॉइंट ऑफ व्यू इलेक्ट्रिकल का रहता है. अगर आपके वहाँ जो भी आपका इलेक्ट्रिकल बोर्ड होगा, वहाँ से आपके घर के पास के ट्रांसफॉर्मर में बिजली आती है, वहाँ से जो पूरा फ्लैट है, अगर वो हाई राइज है 23 फ्लोर का भी है, तो उसके घर तक अगर वो स्विच चालू करता है और लाइट चालू होती है, तो वो वहाँ तक का रोल इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का रहता है. फिर हीट वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग के लिए मैकेनिकल इंजीनियर होता है कि एयर कंडीशनिंग इज अबाउट दी जस्ट नॉट अबाउट दी लग्जरी, इट्स अबाउट दी कंफर्ट. बहुत सारे रिसर्च ने ऐसे बताया है कि एयर कंडीशनिंग के कारण इफिशिएंसी बढ़ती है, जो वहाँ पे एम्प्लॉयज है उनकी एफिशिएंसी बढ़ती है. उसके अलावा फायर सेफ्टी के लिए मैकेनिकल इंजीनियर वहाँ पे होता है. तो ऐसे डिफरेंट स्ट्रीम्स साथ में काम करती है. Right. So guys, this seems very very interesting. एक इस तरीके की स्किल बेस्ड पढ़ाई जिसमें we can एक बिल्डिंग बनने से पहले हम ये जान सकते हैं कि बिल्डिंग कैसे दिखने वाली है, उसमें किस तरीके का इलेक्ट्रिकल सप्लाई रहेगा, क्या कंस्ट्रक्शन रहेगा, ऑन अ वर्चुअल बेस्ड प्लेटफॉर्म. So guys, this could be a very good career prospect for you जो आज ये सोचते हैं कि इंजीनियरिंग कर लिया but what should we do? They are confused. So guys, do check out this particular stream जो अभी colleges में available नहीं है जैसा कि सर ने कहा, but this is available at our platform Skills Rediscovery Building Information Modeling, which is a course by Mr. Ishan Mehta. You can check out this course. We'll be putting our link in the bio. So yeah guys, go check this out and do not miss on this opportunity. This could be a very scopefull career. So sir, last time अभी ही हमने एक चीज डिस्कस करी थी जिसमें आप Revit के बारे में बता रहे थे, and I have also heard a lot about it, but I'm still confused कि इसका क्या रोल रहता है. So can you brief us on what is Revit? Sure. तो Revit is a tool for the building information modeling. अगर हम वर्चुअली जिस प्लेटफॉर्म पे हम उसको बनाने वाले हैं वो Revit है. Revit is not equal to Beam. Beam आपको करना है तो उसके लिए Revit is important tool. बट ऐसा नहीं है कि सिर्फ Revit ही हमारे कोर्स में इंक्लूडेड होगा. हमारा जो कोर्स है उसके अंदर जो हमारे बेसिक्स है, अगर मॉडल तो कोई भी बना सकता है, पर उस मॉडल के अंदर कहाँ पे कौन सी चीज रहेगी वो भी इंजीनियर्स को पता होना चाहिए, वरना इंजीनियर्स एंड ड्राफ्टर में कोई डिफरेंस नहीं रहेगा. तो Revit इज अ टूल फॉर इट, एंड वो ग्लोबली 90% ऑफ द बीम प्रोजेक्ट में Revit ही यूज होता है. और यूरोप, मिडल ईस्ट जैसे जो कंट्रीज है वहाँ पे तो बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग करना इज अ कंपलसरी. अगर आपको बिल्डिंग यूज परमिशन लेना है तो उसके लिए आपको BIM करना ही पड़ेगा. और तो उसके लिए Revit सबसे ज्यादा यूज होने वाला सॉफ्टवेयर.
और इस कोर्स के अंदर हम रेविट भी इंक्लूड करने वाले हैं। राइट, तो इट्स बेसिकली लाइक कि जैसे हम प्रोग्रामिंग के लिए, कोडिंग के लिए जो टूल्स यूज करते हैं, लैंग्वेजेस यूज करते हैं, उसी तरीके से रेविट करते हैं बीम के लिए। एब्सोल्युटली, ठीक है। एंड सर, मुझे ये भी जानना था दैट लाइक यू हैव डन अ लॉट ऑफ प्रोजेक्ट्स इन दिस पर्टिकुलर फील्ड आल्सो। तो इंडिया में किस तरीके से ऑपरेट करता है और क्या स्कोप है इसका इंडिया में, अगर कोई इसको ऑप्ट भी करना चाहे, जैसे आप इतने सालों से कर रहे हैं, तो इंडिया में कितना स्कोप है, हाउ डज इट ऑपरेट इन आवर कंट्री? बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग की थाउजेंड्स ऑफ कंपनीज इंडिया में ऑपरेट कर रही है, पर ऑलमोस्ट 90% ऑफ देम आर डूइंग आउटसोर्सिंग वर्क। मीन्स वो लोग काम करते हैं यूएस, मिडल ईस्ट और यूरोप के प्रोजेक्ट में, यहाँ बैठे बैठे। और इंडिया के लिए ये टेक्नोलॉजी नई है, अभी पीपल आर स्टार्टेड एडोप्टिंग इट। जैसे कि मैंने सेंट्रल विस्टा जो हमारा पार्लियामेंट बन रहा है उसके अंदर मैंने BIM में काम किया हुआ है। उसके अलावा अभी सांता क्रूज में टाटा की होटल बन रही है, ताज जिंजर, उसके अंदर भी वो लोग BIM इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो इट इज़ न्यू फॉर इंडिया बट इट इज़ नेसेसरी एंड नीड ऑफ द हावर। जैसे हमें पता है कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आके गया, ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ, वो सारे रिवॉल्यूशन में इंडिया ने स्ट्रांगली पार्टिसिपेट नहीं किया था। पर ये जो अभी मॉडर्न इरा कंस्ट्रक्शन है उसका रिवॉल्यूशन में इंडिया इज स्टार्टिंग। राइट, आई एम श्योर कि जैसे जैसे इसके बारे में और अवेयरनेस आएगी, जैसे जैसे पीपल विल गेट टू नो अबाउट कितना इम्पोर्टेंट है, ये कितना इजी बना देता है आपके काम को, तो आई एम श्योर पीपल आर गोइंग टू ऑप्ट फॉर इट। तो आई वाज also having a question कि जब बीम को अभी यूज करना चालू किया इंडिया में, तो पहले जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन होता था वो पेपर पे ही होता होगा, जितना भी देखते होंगे आप, मतलब वर्चुअली अभी तक हमने उसको प्रॉपर्ली अप्लाई नहीं किया है इंडिया में, इफ वी टॉक अबाउट। Yes, till 1980 they are doing the drafting work by hand। तो इंजीनियर से ज़्यादा वैल्यू स्केच पीपल की होती थी तब। और उसके बाद ऑटोकैड करके सॉफ्टवेयर जो अभी मार्केट में करंटली इंडिया में यूज हो रहा है फॉर एवरी प्रोजेक्ट, तो वो चालू हुआ। और उसके अंदर जो है वो आप रूम की लेंथ एंड विड्थ को आप उसके अंदर देख सकते हो। जो उसका थर्ड एक्सिस है, जो हाइट है, उसके बारे में आपको आइडिया नहीं आता है, तो उसके लिए एक रेविट इम्पोर्टेंट है। उसके अलावा क्या है कि रेविट के अंदर हम जो बनाते हैं वर्चुअल कंस्ट्रक्शन मॉडल, उससे हमें पहले से ही आइडिया आ जाता है कि कौन कौन से प्रॉब्लम हम फेस करने वाले हैं। तो वो प्रॉब्लम हम अर्ली स्टेज पे सॉल्व करते हैं, उसका हमें टाइम बेनिफिट मिलता है। और कंस्ट्रक्शन में टाइम इज एवरीथिंग, क्योंकि अगर एक दिन भी आपका बढ़ता है तो आपको लेबर कॉस्ट, क्योंकि यहाँ पे हम डेली वेजेस पे काम करते हैं। उसके अलावा जो क्रेन और हैवी मशीनरी होती है जो रेंटिंग पे होती है, तो वो सारा भी एक रहता है कि वो कॉस्ट कटिंग हो जाता है अगर आप टाइम सेव करते हो तो रेविट आपको एक्यूरेट मॉडल देके टाइम सेव करता है और कॉस्ट भी सेव करता है। कि अगर मैं 3D में उसको देखता हूँ तो मुझे ज्यादा विजुअलाइज हो पाएगा कि कैसे मैं इसको इफिशिएंटली वर्क कर सकता हूँ, कहाँ से मैं कौन सी चीज लेके जाऊंगा तो मुझे थोड़ा ज्यादा बेटर रहेगा। और दूसरा ये है कि इट्स अबाउट द कोलैबोरेशन ऑफ ऑल पार्टी। इसमें ऐसा नहीं है कि कोई एक ही इन्वॉल्व है, जो मॉडल बनाने वाला है वो तो है, उसके अलावा उसी प्रोजेक्ट का आर्किटेक्ट, उसी प्रोजेक्ट का कॉन्ट्रैक्टर, मैकेनिकल डिजाइनर, इलेक्ट्रिकल डिजाइनर, सिविल इंजीनियर, सारे ही उस प्लेटफॉर्म पे रहते हैं, तो एवरीबॉडी ऑन द सेम पेज, वो भी उसका एक बहुत बड़ा एडवांटेज। राइट, दिस साउंड्स रियली इंटरेस्टिंग। आई मीन आई एम सो, मुझे भी काफी अजीब लगता है दैट पीपल डोंट नो अबाउट इट। मैंने भी पहली बार सुना है एंड आई एम श्योर उनको भी जैसे पता चलेगा दे आर गोना गेट इनटू इट। जैसे हमने अभी 1-2 साल पहले डिजिटल मार्केटिंग के बारे में सुना था, और अभी भी ऐसा है कि डिजिटल मार्केटिंग बोलो पीपल डोंट अंडरस्टैंड कि क्या है, एंड हर चीज वर्चुअल हो रही है, चाहे वो इंजीनियरिंग हो, मार्केटिंग हो, कुछ भी हो। तो आई गेस गाइस इसका सबसे अच्छा बेनिफिट उठाना आपके हाथ में है, और आपके पास एक कोर्स है जिसमें आप इसके बारे में सीख सकते हो। तो या गाइस गो फॉर इट। तो सर मेरा एक और ये क्वेश्चन था कि इसके अलावा और क्या मॉडर्न टेक्नोलॉजीज हैं, मतलब बीम के अलावा और क्या मॉडर्न टेक्नोलॉजीज हैं जो इस तरीके के कामों में या बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में मदद करता है? जैसे कि
अभी हम देखते हैं कि न्यूज़पेपर जैसे ही खोलते हैं तो वीकली एक बार तो हमें ग्लोबल वार्मिंग के बारे में सुनने में आता है। और वैसे भी हम घर के बाहर भी अगर निकलेंगे तो सबसे ज्यादा जो चीजें दिखने वाली है वो है एक तो व्हीकल्स और बिल्डिंग्स। तो बिल्डिंग के अंदर अभी एक कंसेप्ट है ग्रीन बिल्डिंग, जिसके कारण हम जो हमारा कार्बन इमिशन है वो कैसे कम से कम कर सकते हैं, कैसे हम रिन्यूएबल एनर्जीज को यूज कर सकते हैं, उसके बारे में ग्रीन बिल्डिंग है। उसके अलावा आपने कोविड में सुना होगा शायद कि चाइना ने अराउंड 14 डेज में पूरी 1000 बेड की हॉस्पिटल स्टेबलाइज कर दी थी। सो हाउ कैन दे डू दिस काइंड ऑफ फास्ट ट्रैक कंस्ट्रक्शन? तो उसके लिए भी एक टेक्नोलॉजी उन्होंने यूज की थी, मॉड्यूलर कंस्ट्रक्शन। तो दे आर बेसिकली डिवाइडेड होल बिल्डिंग इनटू स्मॉल बॉक्सेस एंड दे गिव ईच बॉक्स टू ईच वेंडर। सो basically whole building is constructed inside the shop of the vendor and then assembled on site. सेम ऐसा कंसेप्ट एक प्री कास्टिंग का है, जहाँ पे जैसे कोई मेट्रो का कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो उसके लिए प्री कास्टिंग यूज होता है कि जो पार्ट्स होते हैं बड़े बड़े आरसीसी के वो फिक्स बने होते हैं और वो हम डायरेक्टली उसको ब्रिज पे लाके आपको सिर्फ असेंबल करना रहता है। तो वो भी एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी का पार्ट है। और 3D प्रिंटिंग भी सुना होगा कि बिल्डिंग भी 3D में प्रिंट करके वो बना रहे हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो अभी सबसे ज्यादा आपने सुना होगा कि फेसबुक ने भी अपना नाम मेटा कर दिया है, तो एवरीथिंग इज गोइंग वर्चुअल। तो उसके लिए वो भी एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी का पार्ट है कि साइट पे जैसा काम चल रहा है उसका 3D स्कैनिंग होता है और वो स्कैनर हमारा जो मॉडल बनता है उसके साथ कंपेयर होता है, रियल टाइम कंपेरिजन होता है। तो बेसिकली ये सारी मॉडर्न टेक्नोलॉजीज है। और आयरनी ये है कि ये सारी मॉडर्न टेक्नोलॉजीज इज रिलेटेड टू बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग। अगर आपको 3D प्रिंट करना है तो आपको 3D मॉडल चाहिए होगा। अगर 3D मॉडल ही नहीं होगा तो आप प्रिंट कैसे करोगे? अगर आपको वर्चुअल ऑगमेंटेड रियलिटी या मेटावर्स में जाना है तो उसके लिए भी एक वर्चुअल बिल्डिंग चाहिए। तो ये सारी चीजें रिलेटेड टू बिग, दैट्स व्हाई BIM इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट मॉडर्न टेक्नोलॉजी। राइट, वाओ। एंड मतलब इतना बड़ा स्कोप है इसका, एंड आई एम सो थ्रिल्ड कि इसके बारे में जब लोग जानेंगे, एंड बहुत सारे लोग जिनको ये लगता है कि उनका इंटरेस्ट है डिजाइनिंग में या वर्चुअली चीजों को डिजाइन करने में, तो उनको कितना कुछ करने को मिलेगा। पीपल विल नॉट जस्ट बी वंडरिंग कि क्या करे। So I'm sure it's going to be a very hopeful career for our engineers and for other people as well. So sir, जिस तरीके से आपने बताया कि 3D प्रिंटिंग हो गई, ऑग्यूमेंटेड रियलिटी भी आजकल हम सीख रहे हैं, जब हम रियल में चीजें देख पाते हैं, चाहे वो हमारे घर का इंटीरियर हो या हमारी कार के अंदर का इंटीरियर हो। तो मुझे ये जानना था कि ये जो एक पर्टिकुलर स्किल है, तो क्या ये सिर्फ बीम में सिर्फ इंजीनियर बैकग्राउंड के लोग ही ऑप्ट कर सकते हैं या फिर किसी और के लिए भी स्कोप है, कोई और प्रोफेशन के लिए? इंजीनियर, आर्किटेक्ट भी कर सकते हैं और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो एक्चुअली में है नॉन टेक्निकल, लेकिन इफ दे एडॉप्ट दिस स्किल तो वो भी आ सकते हैं। जैसे कि आज से अगर आप 20-30 साल पहले अगर कोई बिल्डर के या डेवलपर के वहाँ पे घर देखने के लिए जाते हैं तो वो दे आर शोइंग अस द बॉक्सेस। तो बॉक्स का एक मॉडल रहता था, वो हमें दिखा देते थे। और आज जब हम वही चीज देखने जाते हैं तो वो हमें एक पूरा वर्चुअल रियलिटी दिखाते हैं। उसके अलावा रेंडरिंग, इमेज, वॉक थ्रू, वो सारी चीजें आ गई है। तो वो जो चीजें हैं अगर आपने एडॉप्ट की है तो आपके लिए प्लस पॉइंट है, वरना आप नहीं सर्वाइव कर पाओगे, बिकॉज टेक्नोलॉजी इज चेंजिंग एवरी डे। राइट। तो इफ अ नॉन साइंस बैकग्राउंड स्टूडेंट इस कोर्स में आके पढ़ना चाहे, फिर पॉसिबल है? समझना चीजों को पॉसिबल है। मेरे काफी सारे फ्रेंड्स हैं जो जस्ट लाइक IT, in IT if you heard that mechanical engineer, commerce background people, art background people, everyone is moving to the IT. The same way building information modeling is open to all, just you should have interest in it. wow, nice. तो आई एम श्योर गाइज, आप लोगों ने जितना भी सुना और जितना भी समझा इसके बारे में, यू गाइज वुड लाइक टू एक्सप्लोर मोर अबाउट बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग, जो कि इंडिया में अभी
तो इतना ज़्यादा प्रेवलेंट नहीं है, बट आई एम श्योर एज एंड व्हेन पीपल गेट टू नो अबाउट इट, पीपल अप्लाई इट मोर. अब जैसे कि सर ने कहा कि 1000 से भी ज़्यादा कंपनीज हैं जो ऑलरेडी इंडिया में काम कर रही है, बट वो आउटसोर्स वर्क कर रही है. तो आई एम श्योर लोगों को पता है, आता है, बट इंडिया में राइट अपॉर्चुनिटी नहीं मिली है. तो गाइज, कल करे तो आज कर, आज करे तो अब. आई एम श्योर आप लोग समझे होंगे इसकी इम्पोर्टेंस, एंड गो चेक आउट दिस कोर्स एंड स्टार्ट लर्निंग, build a new skill and create a best skillful life for you. And yeah, so sir, with this we have come to an end to our questions. I'm sure कि ये interaction से हमारे viewers को काफी information knowledge मिली होगी. जितना भी lag disruption हुआ, उस आपके इस knowledge से, आपके इस wise words से वो सब कुछ compensate हो गया. So thank you so much sir for all the अमेजिंग इन्फॉर्मेशन. आप कुछ कहना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को, अपने कोर्स के बारे में कुछ और बोलना चाहेंगे, या कुछ भी पार्टिंग वर्ड, व्हाट वुड यू लाइक? यस, अगर आपको यहाँ पे रह के अपना स्टार्टअप करना है, कुछ नया करना है, तो किसी के पास भी फिजिकली बिल्डिंग बनाने के पैसे नहीं होते हैं, इतने सारे बहुत लोगों के पास, पर आप उसको वर्चुअली कंस्ट्रक्ट करके भी आप वो जो आपका वर्चुअल मॉडल है उसको डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं. अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है कि वो अब्रॉड जाके सेटल होना चाहता है, तो अब्रॉड में इसकी बहुत ही डिमांड है. वहाँ पे स्टाफ कम बढ़ रहा है, इसीलिए वो लोग आउटसोर्स करते हैं. तो ऐसे अगर आपको यहाँ रहना है, जॉब करना है, अब्रॉड जाना है या फिर स्टार्टअप करना है, सबके लिए दिस टेक्नोलॉजी इज वेरी प्रीफरेबल. एब्सोल्युटली. तो गाइस, जैसा कि सर ने एक और नई चीज बताई जाते जाते कि अगर आप इसमें नहीं भी हो, फिर भी अगर आपके पास ज़्यादा कैपिटल नहीं है, फाइनेंस की प्रॉब्लम है, आप फिर भी अपने स्किल्स यूज कर सकते हो, अपने वर्चुअल स्किल्स, अपने टेक्निकल स्किल्स, और आप सीख सकते हो. और हो सकता है कि आपने इसके बारे में पता नहीं हो, पर सीखने के बाद में आपको पता चलेगा कि यू हैव अ पैशन फॉर इट, यू हैव अ टैलेंट फॉर इट. So guys, there's no harm in trying it out. So I'll be putting up a link in the bio of the course, and we'll be coming up with more such informative things about building information technology with our trainer, Mr. Ishan Mehta. So thank you so much, sir, for joining us today. Very fruitful. I learned a lot today, something new. So guys, thank you so much for joining again. And किसी को भी कोई भी questions हो, you can type in the comment section below. अगर आपको इससे रिलेटेड कोई क्वेरी हो, you can ask. We'll put up a question and answer round soon. तो उसमें भी आप पूछ सकते हैं. तो और किसी को अभी लाइव ज्वाइन करना हमारे साथ, तो you can send us a request. आप सर से अपने questions पूछ सकते हैं. And yeah, thank you so much everyone. I'll be waiting for your questions for 2 more minutes. And yeah. Okay. Jaya, RK, but if you guys have any questions about this particular concept, you can. Building information technology, guys, जिसके बारे में आज हमने बात करी, एक ऐसा कॉन्सेप्ट जहां आप कोई बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन होने से पहले उसको अपने वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे डिजाइन करके देख सकते हो. इसके लिए भी बहुत सारे टूल्स हैं. You can also opt for the freelancing work, outsource work, and जिस तरीके से ये सुना गया है कि ये बूमिंग टेक्नोलॉजी है आज इंडिया में, तो उसका स्कोप ज्यादा होगा. आप और ज्यादा सीख सकते हो, और अगर आप अभी स्टार्ट करते हो तो आगे चल के ये काफी प्रॉफिटेबल कॉन्सेप्ट भी हो सकता है आपके लिए, एक करियर ऑप्शन हो सकता है. तो गाइस, व्हाट आर वी वेटिंग फॉर? Okay, sir, since we're done with all the questions, so we're going to end this Insta Live. I'm going to be putting up more questions on our Insta platform and more information about building information technology. I hope more and more people come to your course and you have a fun time with them. Thank you so much, and yeah, thank you, sir. So guys, ये एक जो कॉन्सेप्ट के बारे में आज हमने जाना, ऐसे ही कई इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स हैं हमारे स्किल बेस्ड कोर्सेज में. We'll be putting up more such informative content on our platform. So stay tuned and keep loving, keep following, and keep liking, sharing and supporting Skills Rediscovery. यहाँ पे और भी ऐसे कई कोर्सेज हैं, तो अगर आपको इनके बारे में जानना है, so do visit our website skillsrediscovery.com, and you'll be getting all the courses from various domains, be it technology, science, language, marketing, communication. So what are we waiting for, guys? Just go and check out. And I'll be coming up with yet another Insta Live session. Same time, same place. Stay tuned.